V4 and this is V5. Now A, B, C, D, E, F, G एंड H, ये आपके पास में एक वॉक है, ठीक है। सो अगर ये आपके वॉक की बात करें, V1, A, V2, B, V3, C, V3, D, V4, E, V2, F, V5 एक वॉक है। एक ग्राफ में मोर देन वन वॉक हो सकती है, पॉसिबल है। स्टार्ट फ्रॉम हियर V1 यानी ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंस है, स्टार्ट फ्रॉम अ वर्टेक्स एंड देन ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंस यानी कि वर्टेक्स एंड देन एज, वर्टेक्स एंड एज। सो V1, A, V2, then B, then V3, then C, and then this is C, V3 and then D, then V4 and then E and then again V2 and V2 then F and here V5. So you can see here in this walk vertex can be repeated. You can see that V3 comes twice, but H cannot be repeated. This is called walk. If your end vertices are same, then this is called the close walk. So this is the difference between open and close. So बहुत कोई खास चीज नहीं है इसमें, ठीक है। Now next is path. Path पहले भी लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। Path क्या है? An open walk. वॉक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एंड ओपन वॉक इट मीन्स योर एंड वर्टिसेस आर नॉट सेम। एंड ओपन वॉक इन विच नो वर्टेक्स कैन रिपीटेड, नो वर्टेक्स appears more than once, no vertex appears more than once is called path, So if I say, I give you one statement and that is every path is walk, yes or no? Every path is walk. Anybody in the class? Atulya Krishnan, every path is a walk, yes or no? Yes, ma'am. Okay. Every अब मैं ये कहती हूँ every walk may be a path, yes or no? Every walk is a path. Yes, ma'am. भाई ध्यान से समझिए, आप मैं आपसे कह रही हूँ, मैंने आपसे कहा एन ओपन वॉक इन विच नो वर्टेक्स अपीयर मोर देन वंस, और जबकि हम वॉक की बात करते हैं तो वॉक में ये है कि एज अपीयर हो सकता, एज कभी भी अपीयर नहीं होगा ट्वाइस, लेकिन वर्टेक्स हो सकता है। जैसे कि मैंने ये बात की अभी, यहाँ पे इसकी बात करते हैं हम लोग, दिस वन। सो हियर वी कैन सी हियर दैट वर्टेक्स इज रिपीटेड बट एज इज नॉट रिपीटेड। एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट वॉक, there is a one important condition, vertex cannot be repeated, और उन्होंने h के बारे में कुछ भी नहीं कहा है, तो it means h can be repeated. So this is the basic difference between the path and walk. In walk, vertex cannot be repeated. Sorry, in walk, h cannot be repeated. In walk, h cannot be repeated, and in path, vertex cannot be repeated. If I am talking about the same graph, अगर मैं फिर से हम बनाते हैं, ठीक है। राइट दिस, V1, V2, V3, V4, V5, A, B, C, D, E, F, G एंड H, ठीक है। अगर मैं लाती हूँ V1, A, V2, B, V3,
D, V4. Here, V1, A, V2, B, V3, D, V4. You can see here, ये है आपके पास में, this one, ठीक है, this one. This is your path, ठीक है, ये आपका पाथ है. आप देख सकते हो यहाँ पर, यू कैन सी हियर कि आपका वर्टेक्स रिपीट नहीं हुआ है. इफ इन योर पाथ, अगर मैं आपका ये वाला एज यहाँ पर इंक्लूड कर लेती तो आपका V3 2 टाइम्स काउंट होगा, जबकि आपका वर्टिसेस काउंट वर्टेक्स रिपीट नहीं हो सकता है. सो अर्लियर वन, इन अर्लियर स्लाइड हियर, this is a walk, but this is a path. If I write like this, V1, A, V2, B, V3, C, V3, D, V4, E, E2, F, V5. Start करते हैं यहाँ से, right? This is V1, A, V2, B, V3, C, V3. You can see here, because V3 comes twice. V3, D, V4, E, and then again V2. You can see V2 with 2 बार आ रहा है, F and V5. This is not a path. ये path नहीं है, because V3 and V2 comes twice. So this is the basic difference between the path and walk. And it should also be noted that self loop can be included in a walk, but not a path. Obviously, because you can see here, this is a self loop, and if there is a self loop, then a vertices comes twice. So self loop is not allowed in path, but it may come in the walk. Fine. And another thing is the circuit. Circuit भी अगर हम सर्किट की बात करते हैं तो ये भी सर्किट है एक तरह से. साइकिल और सर्किट में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है. दिस इज सर्किट, ठीक है. स्टार्ट यहाँ से किया और उसमें यहाँ पे ये सर्किट. Because we are talking about path and walk, so this is a circuit. So close, अगर सर्किट की बात करें तो डेफिनेशन क्या होगी? A closed walk. If I'm talking about path, then there is a open walk. If I'm talking about circuit, so closed walk. A closed walk in which no vertex appears more than once. No vertex appears more than once. एक और इंपॉर्टेंट, इनिशियल एंड फाइनल वर्टेक्स हो सकते हैं, क्योंकि क्लोज की बात कर दी. सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट क्लोज्ड वॉक, तो ऑब्वियसली इनिशियल एंड फाइनल जो वर्टेक्स होंगे, एक्सेप्ट देम, एक्सेप्ट अ क्लोज्ड वॉक इन विच नो वर्टेक्स अपीयर्स मोर देन वंस, एक्सेप्ट इनिशियल एंड फाइनल वर्टेक्स. सो प्लीज लेट मी नो if you are asked that every path, no sorry, any closed walk, एक स्टेटमेंट है, any closed walk is a circuit. Please let me know this statement is yes or no. This statement is true or false. Every closed walk is a circuit. बताइए. भारत जैन. false. Why? In a closed walk, vertex can appear twice or more than once, but Okay. not in a circuit. Fine. Good. ठीक है. So this is the concept of the walk and walk and path. अब नेक्स्ट है आपके, मैं आपको एक ग्राफ देती हूँ. ठीक, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है यूलर ग्राफ. The Euler, the man, the scientist who introduced graph theory, and he solved a very famous problem called Königsberg bridge problem. And on the basis of solution of this problem, this graph is known as Euler graph. So what is that? Euler graph
मैं आपको एक स्टेटमेंट दूंगी, देखिए जो भी मैं चीजें आपको बता रही हूँ, these graph and these kind of the characteristics of the graph is very important, so you must know. So what is Euler graph? A closed walk running through, statement सुनिए, a closed walk running through every edge of G exactly once. A closed walk running through every edge of G exactly once. शायद इसी तरह का Königsberg Bridge प्रॉब्लम थी. अगर आप ऐसी कोई सॉल्व एक प्रॉब्लम हो, यूलर जो यूलर था, दैट द साइंटिस्ट यूलर पोज्ड अ मोर जनरल प्रॉब्लम. इन व्हाट टाइप ऑफ ग्राफ G इज इट पॉसिबल टू फाइंड अ क्लोज्ड वॉक running through every edge of G exactly once. So मैं अगर if I'm talking about this graph, अगर हम यहाँ से start करते हैं, suppose यहाँ से बात है, in what type of graph G is possible to find a closed walk. Walk की definition अभी हमने पढ़ी है, a closed walk हमें find करनी है, running every edge, हर एक edge को exactly once cover करना है. यहाँ से start किया, यहाँ पहुंचे, ये हुआ, ये हुआ, यहाँ पे इसको कवर किया, देन हियर, देन हियर, देन हियर. पॉसिबल हो गया? देख लेते हैं. अ क्लोज वॉक, देखिए कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पर. अ क्लोज वॉक रनिंग थ्रू एवरी एज ऑफ जी एग्जैक्टली वंस. और वॉक में बात की गई थी, वॉक में वर्टिसेस कैन बी रिपीटेड बट नॉट एज. हो गया रिपीट? कोई रिपीट भी नहीं हो रहा, एग्जैक्टली वंस हमने कंप्लीट कर लिया. ठीक है. सच अ वॉक इज नॉन कॉल्ड एज, इस वॉक को कहेंगे यूलर लाइन और ऑयलर लाइन. ये प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस है. देखिए यूलर की जो प्रॉब्लम थी, जो कि मैंने आपको फर्स्ट डे बताया था, इन विच एक प्रॉब्लम उन्होंने एक फेमस पेपर पब्लिश किया एंड ही सॉल्व्ड Königsberg Bridge प्रॉब्लम. इन द सेम पेपर यूलर posed a more general problem, in what type of graph G is possible to find a closed walk running through every edge of G exactly once. वहां पर भी क्या था कि आपको हर एक ब्रिज को कवर करना था, एवरी ब्रिज शुड बी कवर्ड एंड एवरी एज शुड बी ट्रेवर्स एग्जैक्टली वंस, और हर बार आपको एक बार उसको कवर करना था. Such a walk is called a Euler line, and graph that consists of an Euler line, a graph that consists of that Euler line is called Euler graph or your Euler graph, whatever you want to say. Euler graph or Euler line. ठीक है. और मोर प्रिसाइजली अगर हम वी टॉक अबाउट डेफिनेशन, अगर हम बात करते हैं क्लोज वॉक के कंटेक्स्ट में, तो if some closed walk in a graph, if some closed walk in a graph contains all edges of a graph, then walk is called Euler line. जैसे कि इस वॉक जो है, इस वॉक को कहेंगे यूलर लाइन और इस ग्राफ को कहेंगे यूलर ग्राफ. यहां से स्टार्ट हुआ, हियर, हियर, and then we cover all the edges exactly once. So this is a Euler graph and this particular walk called Euler line. Fine. Okay. So एक बात बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर हम बात करें यूलर लाइन की, तो दैट इज कॉल्ड अ वॉक एंड दिस काइंड ऑफ वॉक कंटेन्स ऑल एजेस ऑफ द ग्राफ. फाइन. ठीक है. एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा ठीक है, पहले आप मुझे बताइए कनेक्टेड ग्राफ के बाद पता है व्हाट इज कनेक्टेड ग्राफ? कनेक्टेड ग्राफ कोई नॉलेज है? आप लोगों ने ग्राफ थ्योरी पहले भी पढ़ी है. हर्षित गुप्ता क्या हुआ भाई? तो बताओ डिस्कनेक्टेड, वो कनेक्टेड ग्राफ क्या होता है? मैम फ्रॉम एनी नोड टू एनी नोड देयर इज अ पाथ. We can move from any node to any node in a graph. Very good, very good. So a graph G is said to be, मेरी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं आ रही, एक्चुअली पेन भी बहुत अच्छे से नहीं चल रहा है. कनेक्टेड इफ देयर इज at least one path between every pair of vertices. सिंपल सी बात है. ठीक है. यानी कि हम अगर मैं इस ग्राफ की व्हाट इज दैट दोबारा बना, तो ये सब गलत है. ये बताइए, ये ग्राफ कनेक्टेड है और डिसकनेक्टेड है?
डिस्कनेक्टेड। कनेक्टेड है क्योंकि इसके ये जो है ये एज जो है आइसोलेटेड है, कोई भी इसके साथ में कनेक्शन नहीं है। ठीक है, अच्छा कंपोनेंट भी आपको पता होगा, व्हाट इज कंपोनेंट, हाउ मेनी कंपोनेंट्स इन दिस ग्राफ, यू कैन सी हियर। कंपोनेंट का मतलब है कि यहाँ पर आप जितने आपके पास में डिस्कनेक्टेड ग्राफ, इन अ डिस्कनेक्टेड ग्राफ हाउ मेनी कनेक्टेड ग्राफ इन, हाउ मेनी कनेक्टेड डिस ग्राफ सब ग्राफ इन दिस पर्टिकुलर ग्राफ कॉल्ड डिस्कनेक्टेड ग्राफ, सो सॉरी कंपोनेंट। तो ये डिस्कनेक्टेड ग्राफ है, लेकिन आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे दो पार्ट है, एक तो ये पार्ट है जो अपने आप में कनेक्टेड है, और ये आपके पास में एक सिंपल ग्राफ, सिंपल आइसोलेटेड वर्टेक्स है जो कि अपने आप में कनेक्टेड है। So this graph contains two components. ठीक है, चलिए मैं आपको और एग्जांपल से पहले कनेक्ट के बारे में बता देती हूँ। लाइक ये आपके पास ये पर्टिकुलर ग्राफ है जी, ठीक, और निधि निधि बताइए ये ग्राफ कैसा है? हाँ फाइन, सो आपको यानी कि यू मस्ट बी नोइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कनेक्टेड ग्राफ। सो एक अब मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, आप इसका आंसर दीजिए, एवरी वॉक इज ऑलवेज कनेक्टेड ग्राफ, यस और नो? एवरी वॉक इज अ कनेक्टेड ग्राफ, ऑलवेज, हाउ? आप मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वॉक? एक ही डेफिनेशन है, ऑल्टरनेटिव सीक्वेंस ऑफ एज एंड वर्टिसेस, स्टार्ट फ्रॉम वर्टिसेस एंड एंड फ्रॉम द वर्टिस v1 e व्हाटएवर, ठीक है। एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज है, नो एज कैन बी अपीयर्ड, नो मतलब एज का रिपीटेशन अलाउ नहीं है, ठीक है, वॉक की एक डेफिनेशन है। सो मैंने आपको एवरी वॉक इज ऑलवेज डिस्कनेक्टेड, यस और नो, ध्यान से बताओ। मैं अपना स्टेटमेंट दोबारा से ठीक करती हूँ, अ वॉक इज ऑलवेज कनेक्टेड, अब बताओ 100%, ठीक है। सो मैं ये कह दूं, अब यूलर ग्राफ के बारे में मैंने अभी डिस्कस किया और मैंने ये कहा यूलर ग्राफ का सम क्लोज्ड वॉक इन अ ग्राफ कंटेन्स ऑल एजेस ऑफ द ग्राफ, देन वॉक इज कॉल्ड यूलर लाइन। यानी कि यूलर लाइन, यूलर ग्राफ का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है कि वो क्लोज्ड वॉक होना चाहिए, क्लोज्ड वॉक, और ग्राफ का हर एक एज उसमें कवर हो और एग्जैक्टली वंस हो, राइट? ठीक है, तो मैं ये कहूं कि एवरी यूलर ग्राफ इज ऑलवेज कनेक्टेड ग्राफ, यस मैम, यस और नो? यस मैम। ओके, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? कोई डाउट नहीं है। तो हियर द यूलर थ्योरम, जो रिजल्ट दिया था यूलर ने, जिसकी वजह से उन्होंने ग्राफ थ्योरी पे जो पेपर लिखा है, दैट्स व्हाई द यूलर थ्योरम इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ही इज नोन एज द फादर ऑफ द ग्राफ थ्योरी। सो रिजल्ट है, दिस इज कॉल्ड यूलर थ्योरम आल्सो, a given connected graph G is an Euler graph if and only if यानी कि दोनों साइड से ये ट्रू होगा, if all vertices of G are of even degree. This is Euler theorem. What is that? A given connected graph G is an Euler graph if and only if all
all the vertices not A. इसी जब मैंने I डबल F लिख दिया तो if and only if all the vertices of G are of even degree, यानी कि सिंपल सी बात है कि आपका कोई भी ग्राफ है अगर उसके सभी वर्टिसेस इवन डिग्री के हैं देन दिस ग्राफ विल बी यूलर ग्राफ और कनेक्टेड होगा, ठीक है। तो मैं अगर आपसे ये क्वेश्चन, यू आर गिवन अ ग्राफ लाइक दिस, यही ग्राफ था क्या जो कॉनिक्सबर्ग ब्रिज प्रॉब्लम के लिए बनाया था? यही था ना, यही थी कॉनिक्सबर्ग ब्रिज प्रॉब्लम। Yes, ma'am. 7 ब्रिजेस और 4 आपके पास में 4 लैंड था, तो ये शायद ए था, बी था, सी था, डी था और 7 ब्रिजेस 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, यही था, आपको याद होगा, ठीक है। दैट प्रॉब्लम, द कॉनिक्सबर्ग प्रॉब्लम कैन Yes, बी ma'am. मैप्ड ऑन द वर्टिसेस एंड एजेस, all the bridge can be denoted, bridge थे can be denoted as in the edge and the land space can be depicted in a vertices. So simple सी चीज ये थी। So this problem cannot be solved. Why? Because here the Euler theorem, इसी problem के बेस पर उन्होंने Euler theorem का statement दिया, and that is a given connected graph G is an Euler graph if and only if all the vertices are of even degree, ठीक है। If I am talking about this 3 degree, तो ये तो यूलर ग्राफ है ही नहीं, क्योंकि यूलर ग्राफ होगा तो सॉल्व हो जाएगा। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, दिस का भी 3 है, दिस इज 5 एंड दिस इज 3 आल्सो, सो डिग्री इज नॉट, सो पॉसिबल ही नहीं है। अगर डिग्री इवन है तो पॉसिबल है। सो आप बताइए इसमें मैं क्या चेंजेस करती कि जिसकी वजह से ये यूलर ग्राफ हो जाता, कुछ कर पाएंगे? कोई चेंजेस कर सकते हो उसमें? चलो ठीक है, मैं आपको कोई दूसरा याद देती हूँ जिससे कि आपको क्लियर हो, ये बताइए मुझे। क्लियर? क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन, यू आर हैविंग 2 ग्राफ, आपसे क्वेश्चन है कि इन दिस ग्राफ, दिस इज ग्राफ ए एंड दिस इज बी, ग्राफ ए, इन अ ग्राफ ए इज देयर एनी यूलर पाथ, इज देयर एनी यूलर पाथ, बताइए। Yes, ma'am. विच वन? चलिए मैं नंबर डाल देती हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, दिस इज ई, दिस इज एफ, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7। अब बताइए इन ए ग्राफ हैव एनी यूलर पाथ? अगर है तो मुझे उसका नाम नहीं बताइए। A, B, E, F. देखिए बेटा, ए बी ई, ई एफ, ए बी ई एफ। यूलर पाथ की डेफिनेशन क्या है? All edges should be visited once. तो फिर आप ये बताइए कि सिंपल पाथ में और यूलर पाथ में डिफरेंस क्या हुआ? चलिए मैं पाथ को सिंपल कर देती हूँ, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। मैं ये पूछती हूँ इन ग्राफ ए एनी यूलर लाइन पॉसिबल? अब बताइए। No, इन ma'am. ग्राफ ए Yes, ma'am. लाइन पॉसिबल? Yes, ma'am. Ma'am, B, E4, C, अच्छा चलिए आराम से बताओ। बी, E4, E4, C. सी, Ma'am, then we go to E5D. मैंने शायद यहाँ इसका नेम नहीं लिखा ना। Yes, ma'am. चलो मैं ए एट लिख देती हूँ। हाँ बताओ। Ma'am, बी, E8, सी, E8, ई एट, हाँ, D, डी,
E6, E6, E, E, E3, E3, B, B, C, E7, E7, A, A, E1, F, E1, F. E2. ठीक है ये? Anybody in the class? तन्वी कपूर, यस मैम। मैंने आपसे पूछा कि ये ग्राफ जो है इसमें क्या कोई यूलर लाइन पॉसिबल है? यूलर लाइन है तो आप मुझे बताइए। ठीक है, तो बताइए क्या ये यूलर लाइन की डेफिनेशन क्या है? यूलर लाइन की डेफिनेशन है इफ सम क्लोज्ड वॉक, क्लोज्ड की बात कर दी मैंने पहले तो, और वॉक की बात कर दी, तो सबसे पहले ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंस जो होगा वो वर्टिसेस से स्टार्ट होगा, वर्टिसेस पे खत्म होगा, राइट? और सेम वर्टेक्स होगा, कि क्लोज्ड वॉक कह दिया। If some closed walk in a graph contains all edges of the graph, then walk is called an Euler line. और एक और इंपॉर्टेंट बात है कि क्लोज वॉक की बात कर दी, तो उसमें एक बात है वॉक की, जब हम बात करें, देखो दो चीजें इंपॉर्टेंट यूलर ग्राफ की, माइंड में रखो क्लोज वॉक है, यानी कि एंड वर्टिसेस सेम रहेंगे। वॉक 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 की बात करेंगे तो वर्टिसेस कैन बी रिपीटेड, एज कैन नॉट बी रिपीटेड। और एक बात कह दी कि एवरी एज उस ग्राफ, उस यूलर लाइन में आए, ये देख लो, यानी कि हर एक ही एज हो, सारे एज कवर हो। Every edge should be traversed exactly once, ये है every edge should be traversed exactly once, ना तो 0 बार, ना 2 3 बार, एक बार हो तो पॉसिबल है यहाँ पर? मैं बताओ। नो मैम। हाँ बताओ क्यों नहीं है? मैम भाई तो ऐसे तो काम नहीं करते। मैम बी की डिग्री 2 हाँ नहीं बताइए। वाली बात मैम, वहाँ पे वो वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है यहाँ की, हम बात ही नहीं कर रहे बी की डिग्री 2 है कि नहीं है। मैंने अभी यूलर ग्राफ की बात नहीं की, मैं सिर्फ बात कर रही यूलर लाइन की। मुझे यूलर लाइन बताओ पॉसिबल है कि नहीं है? नो मैम, because we cannot make a closed walk, sorry. क्लोज नहीं बना पा रहे हैं इसलिए। Yes एनीवन मैम। इन द क्लास, और कोई एनीवन एल्स इन द क्लास? अतुल कृष्णन, प्लीज लेट मी नो this graph A has any Euler line, yes or no? If there's a Euler line, so please let me know which one. आपने E5 को तो शायद इसमें कवर ही नहीं किया है। तन्वी कपूर, मैम क्योंकि मैम हमने बी से स्टार्ट किया और एंड हम सी पे आके खत्म कर रहे हैं। तो क्लोज वॉक नहीं है। यस मैम। ठीक है, और कोई रीजन? Ma'am, all the edges are not covered. ओके ठीक है, नाउ कम टू बी। व्हाट अबाउट बी? इसमें भी मैं नंबरिंग कर देती हूँ, ठीक है, ऐसे नहीं कर रहे, इसमें कुछ ऐसे कर लेते, बहुत कंफ्यूजन है। V1, V2, V3, V4, V5, V6, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8। ठीक है, अब बताइए आप लोग, this graph B graph have any Euler line, yes or no? Yes. Yes, Which ma'am. which one? V1, E2, V2. चलिए, V1, E2, V2, E3. एक शायद फिर से छूट गया ये वाला, this is E9। हाँ बताओ। Ma'am, this one only that you wrote. E4, I guess. E9 E9, V3. मैंने कुछ, मैंने I think some, this is E.E9, this is E3, this is E3। मैं फिर से बता रही हूँ, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8। अब आप बताइए, शायद मेरे से मिस्टेक हो गया।
V2 के बाद मैं कहाँ जाऊँ? V2, E3, E3, V3, V3, fine. E4, Further, E4, yes. V6, V6, E6, E6, V5, V5, E7, E7, V4, V4, E8, E8, V3, V3, E5, E5. V6, E1, V1. यानी कि there is a alternating sequence of the and walk and alternating sequence of the vertices and edges. This is a closed walk and every edge is traversed exactly once. So है यहाँ पर ऐसा possible? Yes, ma'am. Yes. अच्छा, अब एक और कॉन्सेप्ट देख लीजिए जरा कि इसके सभी एजेस की डिग्री इवन है या नहीं है, सभी नोड्स की। Yes, ma'am. 2 4 2 2 4 2। सो एक और ये भी है। सो ये दिस इज द यूलर अ गिवन कनेक्टेड ग्राफ G इज एन यूलर ग्राफ इफ एंड ओनली इफ ऑल द वर्टिसेस ऑफ G आर ऑफ इवन डिग्री। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये तो स्टेटमेंट है गिवन बाय यूलर थ्योरम और गिवन बाय यूलर द साइंटिस्ट। एंड द प्रॉपर्टी ऑफ द यूलर लाइन, सिंपल सी चीज है, दो चीजें याद रखनी है, क्लोज्ड वॉक हो और एवरी एज शुड बी कवर्ड एग्जैक्टली वंस। तो दिस इज यूलर ग्राफ। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। अभी मुझे भी आपको क्या करना है, मैं आपको एक छोटी सी थ्योरम 2.4 है आपकी नर्सिंग टेक्स्ट बुक में। थ्योरम 2.4 अ गिवन कनेक्टेड ग्राफ G इज एन यूलर ग्राफ इफ एंड ओनली इफ ऑल वर्टिसेस ऑफ G आर ऑफ इवन डिग्री। यानी कि यूलर थ्योरम का प्रूफ आप बुक से करेंगे। ठीक है, और अब मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूंगी। ओके, थैंक यू, आई एम लीविंग द क्लास नाउ। Thank you, ma'am.